मम्मा अब एक दिन ब्रेक, एक दिन आप क्वेश्चंस पूछोगे. हाउ इज द फूड इन हॉस्टल? डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन योरसेल्फ एज अ नॉन हॉस्टलाइट एंड एज अ हॉस्टलाइट? I am still in contact with them and it's just great in hostel. How was Aku's first day in hostel and new school? Did she sleep properly or not? So I'm done from this. These were the questions that had come on DM. अब मैं YouTube वाला ले लेती हूँ. This is a long Q&A. How was Aku's first day in hostel and new school? Did she sleep properly or not? First day So कैसे सोए first थे? day, horrible. Trust me. We don't talk about the first day. But sleep, आधे रात तो हम लोग रोए थे. बाकी का जो सोए वो सोए. मोचो. इतनी याद आ रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग एक सेपरेट बेड पे सो रहे थे विदाउट आवर पेरेंट्स. और ऐसे भी होता है हु स्लीप अलोन, उन लोग को ऐसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लगता है क्योंकि हमेशा ऐसी एक फीलिंग होती है घर पे कि आपकी मम्मा पास में है, रात को लगे तो उनके पास जा सकते हो. एंड स्पेशली मॉर्निंग्स अभी भी बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज मॉर्निंग में हमेशा वी हैव दिस mindset कि mama will come wake us up, then she'll give us breakfast, she'll make us have a bath or at least tell us to have a bath, and everything just feels so emotional in the morning. Trust me, mornings are horrible before sports. Okay. How is the food in hostel and do students get healthy food in hostel? So food in hostel is amazing. We get momos, samosa, everything. वहाँ मतलब ऐसे मम्मा बताएंगी कि उनको लगता ही नहीं है कि बच्चा हॉस्टल से आए क्या खिलाए उसको जंक, क्योंकि वहाँ सब मिलता है. Because जब हम हॉस्टल से आते थे, we used to have a list कि हाँ हमें क्या क्या खाना है, because हमें वो सब नहीं मिलता था. They are given everything. Of course there is a nutritionist जो पूरा डिजाइन करता है, but on weekends and certain evenings जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं जंक, वैसे इनको वो भी मिलता है, और other days इन लोग को पूरा proper healthy diet according to nutritionist मिलता है. Yes. Okay. How are the faculties and do they look up into the matters except academics also? So the faculty, usually all the teachers will be like, the subject teachers will help us in school, but we have house mothers, house mistresses, and also house moderators And tutors. and also, no? tutors also who take care. So basically they do everything to keep us comforted. Even if we're suppose in 12th, they'll still do the same that they did to us in 6th. And they change every year, that's for sure, but they still take care of us wonderfully. Even the seniors are telling us that. And it's not only academics, like the subject teachers will be a bit more biased towards the academic side, obviously, but whenever you need help with anything and the house mistress or house mother is not able to, they will always be there to help you contact or help you solve the situation. Okay. Rate the holistic development there. If any student is not extraordinarily in academic but performs extremely well in sports, does the faculty appreciate it? तो इसका आंसर I will give, they really appreciate it because इतने ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे. academics तो है ही, then there are extracurriculars like macrame, then there is sports, there's sculpting, there is debating and everything. So they make sure कि they also understand, जितना मैंने मीटिंग्स करी है, that it is not compulsory कि हर बच्चा हर चीज में अच्छा हो या हर बच्चा किसी में भी अच्छा नहीं हो. They understand the fact कि एक बच्चा हो सकता है 4 चीजों में excel नहीं करे but next 5 चीजों में करे. तो they understand and tap into the development of the child कि उसको क्या चीज पसंद है. So that's how it is. Do you face any hygiene problems with other roommates? Some might not bathe daily or similar weird habits. So hygiene problems with roommates अलग अलग टाइप के हैं सारे. मतलब there are some who are cleanliness freaks. मतलब अलमीरा में उनका एक हैंगर लेफ्ट से राइट भी हो गया तो they'll start shouting, break the whole dorm down. But ये थोड़े हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते में 1-2 बार नहा लिया, more than enough. ऐसे भी कुछ बच्चे हैं. तो टीचर्स कुछ नहीं बोलती? टीचर्स डांटती है. We have this thing where every day एक रजिस्टर होता है जो हाउस मदर के पास होता है, उसमें एवरी डे बेदिंग का एक कॉलम होता है डेट्स के साथ, देन यूजी वॉशिंग का एक कॉलम होता है, एंड देन साइन करना होता है कि आपने इस दिन ये किया और वी हैव टू. So UG is basically अंडरगारमेंट वॉशिंग, जो इन्हें खुद करना पड़ता है और सब ये धोबी को भेजते हैं. यस, तो उसमें हम लोग का चेकिंग होता है एंड देन वी साइन.
तो जिन बच्चों का साइन नहीं है उनको बहुत गंदी पोजीशन मिलती है, तो इसे नहाना पड़ता है, नो ऑप्शन। सो नहाना ही पड़ता है बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अबाउट हाइजीन, एंड आई एम श्योर एक दो दिन तो स्किप होता होगा यार, दे आर किड्स, दे आर विदाउट देयर पेरेंट्स, एंड हम ही कभी कभी लेजी हो जाते हैं, तो आई एम श्योर दे मस्ट बी ऑल्सो गेटिंग लेजी। इज देयर एनी फाइट टू यूज द वॉशरूम और अदर अमेनिटीज फर्स्ट? यस, ह्यूज फाइट। सुबह लोग जब स्पोर्ट्स से आते हैं तब हम लोग नहाते हैं, तो जब स्पोर्ट्स से आते हैं तो लोग अपने बाल्टी वॉशरूम के अंदर रखते हैं, या तो रात को ही वो लोग रख देते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग कोई नहीं घुस सकता। ऐसे नंबर्स लगते हैं बेसिकली कि जिसकी बकेट या सोप केस या कुछ भी पहले है वो पहले जाएगा, तो ऐसे वो लाइन में लगा रहता है ना, हाँ। एक के पीछे एक। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था। एंड अदर अमेनिटीज में तो नहीं होता, बट जैसे यूजीज वूजीज होने के लिए कभी बेसिन में फाइट वाइट हो जाती है, एंड पीपल बेसिकली वो दरवाजा तोड़ देते हैं अगर आप 5 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में नहा रहे हो तो, या वॉशरूम यूज कर रहे हो, तो तोड़ नहीं देते, दे कीप बैगिंग। जैसे आपको पहली बार जब आई हॉस्टल से तो वी टुक हर टू द होटल, हम होटल में मैं और जतिन सो गए, शी वेंट फॉर अ बाथ, शी केम आफ्टर ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes। आई सेड आपको कर क्या रहे थे बेटा इतनी देर? शी सेड मम्मा हर 5 मिनट में लग रहा था कोई बैंग ही नहीं कर रहा है, जल्दी करो, तो मैं और नहाई जा रही थी। अरे दे बैंग सो मच, कांट Okay. Do you see any difference between yourself as a non-hostelite and as a hostelite? I do, because when I was a non-hostelite, comparatively, I was not so involved in sports and I didn't know like how good I was at something. I never participated, but once I went in hostel, सब मुझे push कर रहे थे, like ऐसे कर सकते हो आप, try it. Captains also, vice captains also, always हर बच्चे को they want to give their special attention that आप ये कर सकते हो, आप try तो करो. So there is definitely a difference. And So साइकोलॉजिकली ये होता है कि अगर आप नोटिस करो घर में अगर एक बच्चा है उसको आप खाना खिला रहे हो, वो बहुत नौटंकी करके खाता है यूजुअली। अगर वही 4-5 बच्चे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, सब एक दूसरे को देख के खा लेते हैं। सो सेम थिंग आई फील अप्लाइज इन हॉस्टल कि जब बच्चे साथ में रह रहे होते हैं, साथ में ग्रो कर रहे होते हैं, साथ में दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे ऑलवेज परफॉर्म मच बेटर देन दे कैन इन स्कूल और एट होम। What's the one thing you miss the most about home except parents and the comfortable environment? something I miss most except parents. Parents तो biggest thing, सबसे बड़ा। मतलब याद करते हो कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ा आप लोग को याद करते हैं, आप उल्टा ही सब। Okay, she thankfully still remembers us. And comfortable environment, वहाँ भी comfortable ही होता है, because वहाँ soft toys, bedding kits सब बहुत अच्छा होता है। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। क्यों, आपके बिल्डिंग फ्रेंड्स और ये सब नहीं? वहाँ भी बन जाते हैं और फिर याद ही नहीं आती ज्यादा, मतलब याद आती है नो ऑफेंस टू ऑल दोस बिल्डिंग फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे गोना किल मी। नहीं, बट एक्चुअली क्या होता है, दे गेट अप एट व्हाट 5:30 और 10 बजे तक रात को इनका इतना स्केड्यूल बिजी रहता है कि आई थिंक हमें ही याद करने के लिए इनको सैटरडे संडे मिलता है कि अच्छा अभी टाइम है, अब मुझे टाइम मिल रहा है कि आई कैन थिंक एंड रिमेम्बर समबडी। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ भी पूछना है। एंड ऑल इन ऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल का वो तो आपको पता ही है, आपने सुना ही है। ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे ब्लॉग में मैं हॉस्टल के बारे में बात करती हूँ। बट आकू इज ऑल्सो एंजॉइंग, शी इज ऑल्सो ग्रोइंग अ लॉट, बट उसके चलते ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा अफेक्शन अलग हो रहा है या कम पड़ रहा है, जो लोगों ने बहुत पूछा था मुझसे। दैट विल नेवर हैपन बिकॉज आई एम स्टिल क्लोजेस्ट टू माई मॉम। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट आई एम मोर क्लोजेस्ट टू एक्सेप्ट हर एंड मॉम एंड जतिन। So anyways, please don't forget to subscribe because we are going to be coming up with a lot of content that you might enjoy, and if you do, please don't forget to subscribe to our channel. And until we see you guys again, keep shining. Bye bye.